So we have completed the topic of acoustic, and next topic is ultrasonics. Okay, so just a minute. Yeah, so we'll start in today's class about the ultrasonics. So in this topic, we have introduction of ultrasonics. So I think we all know from our previous topic as well what is ultrasonics. Okay, then The recording on who is? Sorry, sir. then we have production of ultrasonics. So we have different methods available for production of ultrasonics. So in our syllabus, we have two different methods, experimental methods. So first one is magnetostriction method, and second one is piezoelectric method. Okay, so we'll discuss in detail. Then we have detection of ultrasonic wave. So once we know that a particular kind of wave is available present in the space or in the area, then how we can confirm that whether it is ultrasonic or not. So we'll study different methods or techniques for detecting whether a wave is ultrasonic or not. Then we have variety of applications of ultrasonics. So few are listed in our syllabus as well. So we have green energy, use of ultrasonics in green energy, sound signaling, dispersion of fog, in remote sensing, and in cars airbag sensor. Okay, so let us begin with the ultrasonics. So as we know that the word ultrasonics combined with the Latin roots ultra means beyond and sonic means sound. Okay. So the wave which is beyond the sound, so frequency higher than 50 kilohertz or 20 kilohertz. So ultrasonic refers to any study or application of sound waves that are higher frequency, that are having higher frequency than the human audible range. Okay. So classification of sound we have done infrasonic, which has frequency less than 20 hertz. Audible range है हमारे पास approximately 20 to 20,000 hertz or 20 kilohertz up to. And ultrasonic is the wave which whose frequency is beyond 20 kilohertz or 20,000 hertz, and it is inaudible. ठीक है जी. अच्छा बजे how this kind of range is different from electromagnetic spectrum. So आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो ट्रांसवर्स वेव है, उसमें है विजिबल वेव जो विजिबल रीजन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गामा रे है, रेडियो वेव्स है. Then how these category of waves are different from ultrasonics or elastic wave spectrum? Any idea? बिकॉज सर ये तो साउंड वेव है ना, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव होती है, तो ये तो Yes. कैटेगराइज ही अलग तरीके से होगी. So there are, बच्चा मैं इसको brief कर देता हूँ. Electromagnetic wave can travel in vacuum as well. Yes, and it requires material medium. So आपके पास ये सर हाँ जी बच्चे. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना. जस्ट अ मिनट बच्चे, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो एक है आपके पास EM वेव स्पेक्ट्रा, ठीक है जी, और दूसरा है आपके पास इलास्टिक वेव स्पेक्ट्रा. सो वी हैव टू डिफरेंट कैटेगरीज. एक है आपका ट्रांसवर्स वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है आपका इलास्टिक वेव को. ठीक है जी. सो इसमें हमारे पास क्या रेंज रहती है बच्चे? यहाँ है फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो है गामा रे फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? X-ray. एक्सरेज. देन एक्सरे हो गया. Microwave. देन UV rays. यूवी, UV rays. अल्ट्रावायलेट.
ठीक है, अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वायलेट मींस वायलेट जो कलर है जो विजिबल रेंज का है। सो और हमारे पास पर्टिकुलर रेंज है एक विजिबल वाली, Visible region. Visible. ये आपके पास है 400 400 टू 700 अप्रोक्सीमेटली 750 नैनोमीटर्स, या आप इसको आर्मस्ट्रांग में भी लिख सकते हो। देन वी हैव बियॉन्ड दैट इंफ्रारेड, देन वी हैव माइक्रोवेव, and then we have Radio wave. so this is the electromagnetic wave spectra, transverse wave spectra आप इसको बोल सकते हो। inelastic wave spectra we have audible range 20 hertz to 20 kilohertz, ठीक है, ये ऑडिबल है। इससे नीचे है जो हमारे पास दैट इज इंफ्रासोनिक्स, और इससे ऊपर है अल्ट्रासोनिक्स। क्लियर हो गया बच्चे? So there are two different kind of spectra. One is for transverse wave, another one is for elastic wave, जिसको आप मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हो। ठीक है जी? सर हाँ जी बच्चे। सर ये एक्सरे के बाद क्या? ये है विजिबल रीजन बच्चे, विजिबल। मैंने इसीलिए आपको इसकी रेंज भी बता दी है। ठीक है, सो अच्छा, अल्ट्रासोनिक यूज कहाँ हो रही है अब? जनरली हमने देखा है कि एनिमल्स और बर्ड्स दे यूज अल्ट्रासोनिक्स, सो पर्टिकुलरली बैट्स विच चमगादड़ जो है यूज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी अप टू 100 किलोहर्ट्ज। सो 20 किलोहर्ट्ज तक हमारे जो ऑडिबल है, बट दे आर यूजिंग बियॉन्ड 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है, फॉर लोकेटिंग देयर फूड सोर्सेज एंड नेविगेशन। सो दे आर यूजिंग अल्ट्रासोनिक्स फॉर फाइंडिंग देयर फूड एज वेल एज फॉर नेविगेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज राइनोसेरोस विच यूज इंफ्रासोनिक्स। अब अल्ट्रासोनिक की बात कर ली जो हमारी ऑडिबल रेंज से ऊपर थी, अब इंफ्रासोनिक। सो दे यूज फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज टू कम्युनिकेट। ठीक है, Hello. and we have ranges of hearing for variety of species. Hello. ठीक है बच्चे? So we have humans, we have audible range of 20 hertz to 20,000 hertz, 20 kilohertz. Similarly for cats, dogs, horses, elephants, and other animals, we have different range of audibility. Sir, rhinoceros का कितना था? 5 hertz बचे। ठीक है जी? Then we'll discuss about the properties of ultrasonic waves. So first, since frequency ज़्यादा है इनकी, so they are high, they have high energy content. E is equal to h nu के according. Frequency ज़्यादा है, so they are highly energetic. Second one is just like ordinary sound wave, ultrasonic wave they can be reflected, refracted and absorbed. ठीक है जी? So ये उन properties को भी follow कर रहा है। Third one is they show negligible diffraction. अब क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, सो ये पिन पॉइंट ट्रेवल करेंगी, सो डाइवर्ज नहीं होंगी ज्यादा। सो इट मींस देयर डिफ्रेक्शन। आपका क्या है, अगर ये सोर्स है फॉर एग्जांपल, और आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, से पॉइंट P1, सो अगर आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, सो यहां से ट्रेवल करती करती ये डाइवर्ज कर जाती है इस पॉइंट पे या इस तरह, सो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही। बट अगर आपकी लेजर है, लेजर सीधा विद स्मॉल डाइवर्जेंस ये पहुंच जाएगी। सिमिलरली आपकी अल्ट्रासोनिक है, ये भी इसी तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए डाइवर्जेंस बहुत कम होगी, सो डाइफ्रेक्ट नहीं करेगी। सो ड्यू टू स्मॉलर वेवलेंथ। हाँ जी बच्चे? डाइवर्जेंस आता है कि मतलब? डाइवर्जेंस तब आता है जब आपका एनर्जी कंटेंट कम हो और आप ट्रेवल करते करते बेंड कर रहे हो। एनर्जी कम है ना, तो उसी पाथ को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आपका एनर्जी लॉस होता जा रहा है, वैसे वैसे आपका जो है पाथ बेंड करता जा रहा है। सो हेंस अब डाइवर्ज नहीं कर रही, सो दे कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ओवर द लार्जर डिस्टेंस। आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड करनी है, यू कैन मेक यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन बिकॉज दे हैव स्मॉलर वेवलेंथ एंड नेग्लिजिबल डायफ्रेक्शन। सो अब लार्जर डिस्टेंस तक जाने के लिए दे विल ट्रेवल द डिस्टेंस विदाउट एनी अप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो उनका एनर्जी कंटेंट सेम रह रहा है, दैट इज व्हाई दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ। फोर्थ वन इज intense ultrasonic radiation has disruptive effect in liquids by causing bubble to be formed.
अच्छा बच्चे, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ऑयल ड्रॉप, तो इज इट फिजिबल? मिक्स होते हैं वाटर और No, ऑयल? sir. No, sir. No, sir. No, sir. But in food industry, sometimes we need the solution of water and oil, or the more than two things which do not mix with each other. So sometimes we need these kind of solutions for preservation of the food. So इस case में हम क्या करेंगे? We can pass the ultrasonic wave through the, for example, oil drop, and due to their high energy content, they start oscillating or vibrating the bubble in such a way कि एक पॉइंट पे आके वो ब्लास्ट कर जाएगा. सो ऑयल ड्रॉप विल ब्लास्ट इनटू द वाटर लिक्विड वाटर. सो दे विल मिक्स इन दिस वे. सो फोर्सफुली हम उसको यूजिंग अल्ट्रासोनिक्स मिक्स भी करवा सकते हैं, उनका सोल्यूशन बना सकते हैं. इनसॉल्युबल लिक्विड्स दे कैन बी मेक सॉल्युबल बाय पासिंग द अल्ट्रासोनिक. सर हाँ जी. सर ये डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट मतलब? डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट मतलब अगर आप किसी बबल में से हाई एनर्जी कंटेंट पास कर रहे हो, सो जैसे ही वो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना शुरू करेगा और रेजोनेंस अचीव होगी, वैसे ही एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ऑयल जो है वो ब्लास्ट, ऑयल ड्रॉप ब्लास्ट कर जाएगा, पीसेस में ब्रेक कर जाएगा. सो बाय दैट वे यू कैन, अब अपने उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले आए, यू कैन मेक ऑयल सॉल्यूशन ऑफ ऑयल ड्रॉप्स एंड वाटर, ओके सर. फॉर एग्जांपल. ठीक है. So then next one is if an arrangement is made to form stationary wave. अब आपका एक हाई एनर्जी कंटेंट है, एक फॉरवर्ड वेव है आपकी, यहां से आपने रिफ्लेक्ट करवा के उसको एक स्टैंडिंग वेव बना दी है. ठीक है. फॉर्म ए स्टेशनरी वेव ऑफ अल्ट्रासोनिक्स इन लिक्विड. इट सर्व्स एज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और अकाउस्टिक ग्रेटिंग. सो आपकी लैब में एक एक्सपेरिमेंट भी है, फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन लिक्विड. ठीक है. जो लैब में एक्सपेरिमेंट है वो यही पर्पस, उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव से एक स्टेशनरी वेव बना रहे हैं और वहां से हम आप उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो. ठीक है जी. सो ये जो हमने स्टैंडिंग वेव बनाई है बच्चे, अब ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? ग्रेटिंग एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे आपने यंग्स डबल स्लिट किया कि एक ओपेक हो जाएगा पार्ट, देन दूसरे से ट्रांसमिट कर सकता है, देन ओपेक, देन ट्रांसमिट. सो यहाँ से आप डायफ्रैक्शन पैटर्न या इंटरफेरेंस करवा सकते हो. सो फॉर एग्जांपल ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये ओपेक है, इससे पास नहीं कर सकती है. ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यहाँ से लाइट या अल्ट्रासोनिक पास कर सकती है. सिमिलरली यहाँ ब्लैक वाले से पास नहीं कर सकती है, एंड सो ऑन. तो जब आप अल्ट्रासोनिक वेव, ये है मैकेनिकल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ठीक है. ग्रेटिंग एलिमेंट भी, ग्रेटिंग भी बोलते हैं इसको सिंपली. सो ये इसकी बजाय आप सिंपली अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि अब एक बार ये मैकेनिकल बना लिया तो आप इसकी विड्थ कम ज्यादा नहीं कर सकते हो. ये जो बन गया वो फिक्स हो गया. बट इसकी बजाय अगर आप यूज करोगे अल्ट्रासोनिक, सो आप ये जो है इसके बीच का जो λ/2 है ये कभी भी चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टर और द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव. ठीक है. सो आपको कॉस्ट कम इन्वॉल्व होगी और आप वैरायटी ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इससे बना सकते हो. तो ये जो नोड पोजीशन है, ये जो मैंने ब्लैक और व्हाइट बनाया मैकेनिकल ग्रेटिंग में, नोड पोजीशंस दे विल एक्ट एज ब्लैक ओपेक. ठीक है. एंड एंटी नोड पोजीशन दे विल एक्ट एज द ट्रांसमिटिंग पार्ट. सो this is the explanation of diffraction grating using ultrasonic waves. Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे. सर फिफ्थ पॉइंट में जो लिखा हुआ है कि मेड टू फॉर्म स्टेशनरी वेव्स ऑफ अल्ट्रासोनिक इन अ लिक्विड, सर समझ नहीं आया. बच्चे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है लैब में, वो अभी तक हो चुका है आपके लैब में एक्सपेरिमेंट? आई थिंक हो गया होगा. सर कंप्लीट नहीं हुआ वो. नहीं हाँ, सर. दैट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. आप उसमें क्या कर रहे हो, लिक्विड फिल किया हुआ है से वाटर, और आप उसमें 2 मेगाहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी डाल के अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर रहे हो, और ऊपर से जो आप नॉब रोटेट करते हो जिससे आप रीडिंग लेते हो, सर्कुलर जो स्केल है उससे, वो क्या है आपका रिफ्लेक्टर की पोजीशन. सो ये है आपका रिफ्लेक्टर यहाँ पे, ये वाला जो है. सो ये नहीं कराया ये वाला अभी. बच्चे अब हो जाएगा धीरे धीरे. सो ये यहाँ पे आप रीडिंग्स है, इसको चेंज करते हो, इट मींस आप रिफ्लेक्टर की पोजीशन अप या डाउन कर रहे हो. सो आप स्टैंडिंग वेव को चेंज कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो. ठीक है जी. सो स्टैंडिंग वेव में ऑब्वियसली अगर अल्ट्रासोनिक भी छोड़ दें हम, सो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, इसमें आपके पास नोड या एंटी नोड पोजीशन बनती है. ठीक है. सो ये जो है ये डॉट, ये नोड पोजीशन है, और ये जो है क्रेस्ट वाला जो है ये एंटी नोड पोजीशन है. सो नोड पोजीशन से अगर आपने लाइट वेव पास की, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूँ.
यहाँ देखो, अगर आपके पास ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ठीक है, जिसमें कुछ में से पास कर रही है और कुछ में से नहीं पास कर रही, और ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, यहाँ फॉल कर रही है, और ये है स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपको इसका पैटर्न देखना है, सो इट विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है। अब अगर मुझे ये जो मैकेनिकल ग्रेटिंग है, ठीक है, एक तो ये बनाने में डिफिकल्ट है, आप इसके बीच की स्पेसिंग जो है नोड या एंटी नोड वाली या ओपेक और जो ट्रांसपेरेंट वाली है, उस वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, वो वेवलेंथ ऑफ ये जो लाइट एमिट हो रही है इसकी ऑर्डर की होनी चाहिए। सो ये जो डिस्टेंस है ये इसके ऑर्डर का होना चाहिए, तभी आपको डायफ्रैक्शन मिलेगा। मैकेनिकल बनाना है तो ये बहुत टीडियस जॉब है। इसकी बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं एक अल्ट्रासोनिक वेव लेता हूँ, इस तरह से ये फॉरवर्ड में जा रही है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, ये इसको एक स्टैंडिंग वेव वापस भेज देगा। सो ये एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा जिसमें नोड और एंटी नोड पोजीशन है। सो इट इज काइंड ऑफ मिमिकिंग द मैकेनिकल वर्जन ऑफ ग्रेटिंग विद दिस वन, ठीक है। अब यहां से आप अगर आप सोर्स प्लेस करते हो, ठीक है, तो ये वही काम करेगा जो ऊपर वाला मैकेनिकल ग्रेटिंग कर रहा था। सो अब अगर आप यहाँ पैटर्न देखते हो, इट विल फॉर्म द सिमिलर पैटर्न, ठीक है जी। सर हाँ जी बच्चे, सर ये समझ नहीं आया मैं मेकिंग वाला। बच्चे आपको क्या चाहिए मैकेनिकल ग्रेटिंग में, कि एक ये यहां से पास ना कर पाए, अगले वाले से पास कर जाए, फिर यहां से पास ना कर पाए लाइट, ठीक है, अगले वाले से पास कर जाए, एंड सो ऑन, ठीक है। मैकेनिकल ग्रेटिंग में यही हो रहा है कि यहां से पास कर गई, यहां से पास नहीं कर पाई, फिर यहां से पास कर गई, ठीक है। सेम हम यहाँ कर रहे हैं, ये अगर आप लाइट यहाँ से नोड में फॉल करेगी तो नहीं कर पाएगी, यहां से करेगी तो पास कर दिख नहीं जाएगी। रहा सर, सब कुछ दिख नहीं रहा। एक बच्चे तो रहा मेरी तरफ से शेयर्ड स्क्रीन। सो यहाँ फिर अगेन नोड पे पास नहीं कर पाएगी और ये एंटी नोड पे पास कर जाएगी। तो सर जो नीचे एंटी वाले नोड, डायग्राम में सर इनिशियली आपने जो क्या किया है सर, ये वेव बनाई है सर, ये ये कैसे? बच्चे हमने अल्ट्रासोनिक वेव ली है। अब अल्ट्रासोनिक वेव इसलिए लिए क्योंकि हाई एनर्जी कंटेंट है, नोड पे जैसे ही आपकी लाइट फॉल की उसने उसको कट ऑफ कर देगा, ठीक है, इसलिए। सो हमने ऑल्टरनेट ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मुझे चाहिए था, तो मैकेनिकल ग्रेटिंग को रिप्लेस करके मैंने अल्ट्रासोनिक वेव रख दी, सिंपली। सर ये स्टेशनरी पे बनाएगा? स्टेशनरी वेव है बच्चे। सर हम ये कर सर क्यों रहे हैं सोर्स कौन सा मैकेनिकल वेव है? ग्रेटिंग? हाँ जी मैकेनिकल ग्रेटिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्या अचीव करते हैं इससे? बच्चे, आपको अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखना है, ग्रेटिंग क्या बोलते हैं उसको, डायफ्रैक्शन पैटर्न देखना है, सिंगल स्लिट का, डबल स्लिट का, 3 स्लिट, 4 स्लिट, एन स्लिट, तो ये उसमें हेल्पफुल है। जब हम डायफ्रैक्शन वाला यूनिट करेंगे तो आपको उसमें बेटर क्लैरिटी आएगी। सो ये मैकेनिकल ग्रेटिंग है क्या, ठीक है। सो सर अभी के लिए अल्ट्रासोनिक के केस में सोर्स क्या है? बच्चे सोर्स आप मुझे इसको स्टार्ट करने दोगे तब मैं बताऊंगा कि अल्ट्रासोनिक कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल से प्रोड्यूस होती है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालते हो। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है सर, जो स्टैंडिंग वेव है वो भी अल्ट्रासोनिक है और जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं वो भी अल्ट्रासोनिक है। नहीं बच्चे, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट है। हाँ यही पूछ रहा था मैं। हाँ ये लाइट है बच्चे, आप लाइट से ही डायफ्रैक्शन पैटर्न देखोगे ना, इलास्टिक हाँ। वेव से तो नहीं देख सकते, ठीक है जी। सो देन अब इसकी एप्लीकेशन एरिया क्या है बच्चे, द ब्रॉडर सेक्टर ऑफ सोसाइटी दैट रेगुलरली अप्लाई अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी आर मेडिकल कम्युनिटी, एमआरआई वगैरह उसमें यूज होता है, इंडस्ट्री जैसे फूड इंडस्ट्री का मैंने बताया, कटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, एंड मिलिट्री नेविगेशन वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। सो द फील्ड ऑफ अल्ट्रासोनिक हैव एप्लीकेशन फॉर इमेजिंग, आपको अगर मेडिकल फील्ड में यूज करना है इसको, डिटेक्शन, ठीक है, एंड नेविगेशन। सो दीज आर ब्रॉडर कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। सर सोनार में भी होता है? हाँ नेविगेशन में ही आ गया ना मुझे। देन वी हैव two methods of production of ultrasonic wave. सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। बच्चे ये एप्लीकेशंस अभी हम डिटेल में आगे भी करेंगे, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको आइडिया लग जाए कि हम कर क्या रहे हैं। देन वी हैव टू मेथड्स, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड एंड पीजोइलेक्ट्रिक मेथड, ठीक है जी। सो मैं बच्चे इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, स्लाइड्स पे नहीं, मैं ब्लैंक स्क्रीन से फिर बताता हूँ आपको इसको। So I hope blank screen is visible to everyone.
Yes, sir. यस सर। सो उससे पहले मुझे एक डेफिनेशन मैं आपको करवा देता हूँ। सो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड जो है मुझे, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है जी। अब ये प्रिंसिपल है क्या? व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ये ध्यान से देखना मुझे क्योंकि ये हम यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करने में। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक रॉड, फेरोमैग्नेटिक रॉड, आयरन रॉड, निकल रॉड, है ना, इस कैटेगरी। सो जो रिटेन करती हैं मैग्नेटाइजेशन को। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है आपको पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द फेरोमैग्नेटिक रॉड made of ferromagnetic material such as iron, nickel, etc. A small elongation or contraction occurs in its length. So क्या हो रहा है, आप अगर उसकी लेंथ के along मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो उसकी लेंथ चेंज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड इलॉन्गेशन, कि आपकी जो लेंथ है वो मॉडिफाई होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ ही होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये इलोंगेशन क्यों होगा सर? ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे इलोंगेशन क्यों होगा। ओके सर। जैसे आपने ट्रांसफार्मर में हमिंग नॉइज सुनी है मुझे? हमिंग नॉइज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हाँ, है ना, उसमें साउंड आती है जब भी आप ट्रांसफार्मर के पास से निकलो, तो वो किस वजह से होती है? तो वो जो अंदर आयरन बोर्ड है, हाँ, वो इसी वजह से मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसने और आपका जो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो इलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट होके अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। सो अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ स्मॉलर एनर्जी या लोअर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी, वो हमें ऑडिबल रेंज में आ जाती है। सो इस वजह से तो वो एक्सप्लेन करते हैं। सो अभी हमने क्या देखा मुझे कि आपने मैग्नेट फील्ड बनाया नॉर्थ एंड साउथ और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है फेरोमैग्नेटिक रॉड की लेंथ के अलोंग। सो ये दोनों साइड पे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगी और इलोंगेट भी हो जाएगी। ठीक है, सो ये लेंथ चेंज हो रही है। दिस मेथड इज, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ठीक है जी। सो चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, ये किस पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना आपने अप्लाइड फील्ड लगाया है, कितनी पावर का। नेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि आयरन यूज कर रहे हो या निकल यूज कर रहे हो, निकल यूज कर रहे हो तो ज्यादा इलोंगेशन होगी। सो जितना बेटर फेरोमैग्नेटिक होगा उतनी ही आपको इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन बेटर मिलेगी। However, it does not depend on the direction of the field, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड में है। ठीक है, तो ये कैसे जज करेंगे इलोंगेशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है सर? मुझे ये है आपकी रॉड फॉर एग्जांपल, और ये है आपका साइकिल, पॉजिटिव साइकिल एज वेल एज नेगेटिव साइकिल ऑफ अप्लाइड फील्ड। ठीक है, सो पॉजिटिव साइकिल में जब आपने अप्लाई किया तो ये इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव साइकिल में आया तो वो रिवर्स डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा तो वो इस साइड आ जाएगी, सो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। सो एक बार में वो लेंथ बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द एक्चुअल लेंथ, दूसरी बार में वो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। सो ये मैंने आपको काफी एक्सेजरेट करके दिखाया है कि लेंथ इतनी चेंज होगी, बट देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, हाँ, मतलब डायरेक्शन नहीं बचे डायरेक्शन, हाँ ये अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन, ये जो आपने हाई टेंशन सप्लाई करोगे उसके साथ चेंज होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, स्ट्रेंथ वही रहेगी, आप स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अब चलते हैं मुझे इसके मेथड पे। सो ये प्रिंसिपल क्लियर है मुझे? यस सर। सो नाउ इज मेथड। सो इसमें बचे हमारे पास एक तो होता है कि आपको, अब मैंने आपको वेव बना के दिखाई थी कि आपको अल्टरनेटिंग फील्ड चाहिए। तो ये जो वेव है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ऐसी क्या चीज है बच्चे जो ये वेव प्रोड्यूस कर सकती है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सकती है? एनी आइडिया? क्या क्या आपको अगर ऑसिलेशंस चाहिए तो क्या सर्किट यूज करोगे आप? एलसी एलसी सर्किट।
which is also called tank circuit. Yes, sir. ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर बना देता हूँ और यहाँ एक साथ में उसके इंडक्टर लगा देता हूँ। ठीक है जी, सो ये मेरा टैंक सर्किट बन गया। इस कॉइल का नाम मैं X दे देता हूँ और यहाँ एक एरो लगा देता हूँ। इट मींस ए वेरिएबल कैपेसिटर। आप इसकी कैपेसिटी चेंज करके अप्लाइड फील्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, सो इसने मुझे और ये मुझे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए, तो मैंने एक रॉड यहाँ पे इस इंडक्टर के अंदर इमर्स कर दी, क्योंकि यही फील्ड लगाएगा इसको, तो फील्ड लगेगा तभी उसकी लेंथ चेंज होगी। ठीक है जी, सो इस तरह से मैंने एक फेरोमैग्नेटिक रॉड जिसकी लेंथ है AB, वो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो यहां से ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है और अब यहाँ पे कॉइल X से मुझे कुछ फीडबैक चाहिए वापस। ये मुझे सर्किट एक्सप्लेन बना लेने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो आपको एक स्विच चाहिए इसमें, एज ए आप इसको ट्रायड वॉल्व भी यूज कर सकते हो या ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हो। सो ये दूसरा इंडक्टर कॉइल है Y, ये आपका कलेक्टर है, ये एमीटर है। ठीक है जी, और इसको मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं और यहां मैंने हाई टेंशन अप्लाई की, इनपुट फॉर LC सर्किट। ठीक है जी, सो ये कॉइल X थी, ये कॉइल Y हो गई और ये आपका बेस हो गया। दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। सो बजे जैसे अब ये इसमें क्लियर है बजे कि इसमें ये अपर पोर्शन है, दिस इज टैंक सर्किट यूज फॉर ऑसिलेशंस। कुछ पार्ट X कॉइल से अप्लाइड फील्ड जो है हमने एज ए फीडबैक लिया, विच इज इंडक्टिवली कपल्ड टू द कॉइल Y। X और Y इंडक्टिवली कपल्ड है। कुछ फीडबैक मैंने वापस इसी सर्किट को देना है, LC सर्किट को, सो दैट इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाए। तो ये मैंने एज ए फीडबैक बेस को अप्लाई कर दिया, ट्रांजिस्टर ऑफ बेस। जैसे ही आपका बेस की विड्थ कम होगी, कलेक्टर करंट विल इंक्रीज, ठीक है, विच इज फर्दर देन फेड टू द कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये एज ए स्विच है ट्रांजिस्टर। आप इसकी जगह एक ट्रायड वॉल्व भी यूज कर सकते हो। ट्रायड वॉल्व में आपके पास प्लेट होगा, 2 प्लेट्स और एक ग्रिड। सो दिस वन इज ग्रिड। ठीक है, सो आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो। दिस इज ट्रायड वॉल्व एंड दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। सो इनमें इनका काम क्या है, एज ए स्विच काम कर रहे हैं और एक फीडबैक आपको वापस इनपुट सर्किट को दे रहे हैं, LC सर्किट को। सर HT क्या है? हाई टेंशन। सर मतलब? मुझे पावर सप्लाई। ओके सर। सर ये NPN और ट्रायड वाल्व सेम फंक्शन है इनका? हाँ, आपको स्विच चाहिए बच्चे, किसी भी सर्किट से बना लो। मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए। सम बुक्स यूज ट्रायड वॉल्व, सम यूज ट्रांजिस्टर। सो कोई बुक कुछ और भी यूज कर सकती है। सो आपको सिर्फ एक फीडबैक के लिए एज ए स्विच काम करवाना है। हम सर्किट कोई डीसी में तो होगी। सर एक नॉर्मल स्विच नहीं लगा सकते हम? बच्चे आपको फीडबैक भी तो चाहिए और ये कंट्रोल भी तो कर रहा है आपका बेस की विड्थ के ऊपर। आपने जैसे यहाँ पे बेस वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो बेस की विड्थ कम होती जाएगी और इजीली एमीटर से करंट कलेक्टर की तरफ पास हो जाएगा इजीली, और दैट इज कपल्ड टू LC सर्किट। दिस इज टैंक सर्किट। ठीक है जी, सर हम कोई भी लगा सकते हैं ना इनमें से सर्किट? हाँ बच्चे कोई भी लगा सकते हो। सो अब मैं डीसी पावर सप्लाई की होगी। हाँ बच्चे हाई पावर है ना, DC पावर सप्लाई, हाई पावर बैटरी आपने लगाई हुई है। ठीक है, सो अब ये आपका क्लियर है बच्चे, प्रिंसिपल मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये कंस्ट्रक्शन कि आपको टैंक सर्किट चाहिए, एज ए स्विच चाहिए, फीडबैक सर्किट चाहिए, X एंड Y दी कॉइल्स, दे आर इंडक्टिवली कपल्ड, और आपके पास A और B AB लेंथ की एक फेरोमैग्नेटिक रॉड है। ठीक है,
अब वो इसलिए क्योंकि आपको फील्ड जो है एक्स और वाई कॉइल में मिलेगा। जब फील्ड इस पे ए और बी लेंथ वाली जो फेरोमैग्नेटिक रॉड पे अप्लाई होगा तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट या इलोंगेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। सर ये फीडबैक का मतलब समझ नहीं आया कि वायर से हमें क्या फीडबैक चाहिए, समझ नहीं आया। बच्चे मुझे समझाने तो दो ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चीजें यूज होंगी। नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ दे विल वर्क। ठीक है। ओके सर। सो this rod is placed inside two coaxial coils X and Y. So ये जो ferromagnetic rod है ये coaxial है, I mean they are along the same axis. ठीक है। Now coil X ये जो है first वाली acts as inductor and forms a part of tank circuit. So this is your tank circuit. ठीक है जी। By varying the value of capacitance C, the frequency of alternating field can be varied. So मैंने इस पे एरो इसीलिए लगाया कि आप frequency of alternating field जो आप magnetic field apply करोगे उसकी आप frequency change कर सकते हो by changing the capacitance of the capacitor of tank circuit. ठीक है जी। When a high frequency current is passed through coil X, यहाँ से जब high frequency current pass करेगा, a changing magnetic field is set up in it. So यहाँ पे magnetic field आ जाएगा, changing magnetic field, which sets the rod into vibration. अब मैग्नेटिक फील्ड आपने फेरोमैग्नेटिक रॉड के ऊपर लगा रखी है तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज फर्दर लिंक्ड टू द कॉइल वाई। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल वाई के साथ भी इंडक्टिवली कपल्ड होगा। ठीक है जी। एंड इंड्यूसेस ईएमएफ इन इट। सो यहाँ पे ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पोटेंशियल। ठीक है। विच इज फेड टू द बेस, या अगर आप ट्रायड वाल्व यूज कर रहे हो तो ग्रिड। सो विच इज फेड टू द बेस और ग्रिड, सो व्हाटएवर स्विच यू आर यूजिंग, विच इन टर्न इंक्रीज द कलेक्टर करंट या प्लेट करंट। ठीक है, दोनों में से जो भी आप ऑप्शन यूज कर रहे हो। सो जैसे ही आपने यहाँ पे ईएमएफ लगाया, अप्लाइड वोल्टेज बेस पे आपकी बढ़ी, ये कलेक्टर करंट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी। The increased current when passed through coil X, अब यहाँ से फिर से ये जो इंक्रीज करंट है, जो पहले अप्लाइड हाई टेंशन का करंट था वो तो था ही, एडिशनल जो करंट है फीडबैक से आपको मिला है वो एड अप हो जाएगा और पास करेगा कॉइल X से। दिस सेट्स द रॉड्स टू वाइब्रेट विद स्टिल हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि करंट इंक्रीज हो गया। सो जो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी वाइल्ड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल वाई। ठीक है। अब यहां से अप्लाइड करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया और रॉड जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई और वाइल्डली। ये मैग्नेटिक फील्ड विद इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी इज फर्दर लिंक टू द कॉइल वाई। यहाँ पे फिर से ईएमएफ बढ़ेगा। ठीक है। बेस पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फिर से बढ़ जाएगी, बेस की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, कलेक्टर करंट फिर से इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस सर्कल कंटिन्यूज। ठीक है। जब कलेक्टर से करंट निकलेगा तो कॉइल से वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो जाएगा फिर? नहीं बचे, ये थ्रू या हर बार कैपेसिटर से ही होकर कैपेसिटर से ही फ्लो करेगा उसमें। सो ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स आर अचीव्ड। सो ये जो आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि रॉड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रही है, सो जब तक आपकी अल्ट्रासोनिक वाली रेंज 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाएगी तब तक ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। हाई फ्रीक्वेंसी करंट कैसे आ गया? हमने तो डीसी सप्लाई दिया है ना बच्चे। ये हाई टेंशन है, आप इसको अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करो या बहुत ही हाई पावर वाली वोल्टेज सप्लाई करो। सर एक बार ये जो सेंटर वाला सर्कल है, एक बार आप सिर से समझाइए सर, जो ट्रांजिस्टर बना हुआ है। ट्रांजिस्टर है बच्चे। ट्रांजिस्टर क्या होता है? पीएनपी, एनपीएन है ना? यस। ये पी, ये एन, ये एन, ये एमीटर, ये कलेक्टर। ठीक है। ये आईसी है और यहां से करंट पास कर रहा है आई ई। ये है आपका बेस। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, है ना? सो जैसे जैसे सिलेबस से रिमूव हो गया था सर। अरे भाई प्लस 2 में तो पढ़ा होगा या नहीं था ये ट्रांजिस्टर? रिमूव हो गया सर सिलेबस से हमारे। ओके।
तो बस Yes, sir. इसकी डिटेल मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, मैं ब्रीफ आपको बता सकता हूँ क्योंकि काफी डिटेल में है फ्री है। हाँ तो सर, आप वो इसलिए नहीं पता ना। हाँ, सो आप क्या कर रहे हो मुझे, जैसे ही आप ये जो फीडबैक दे रहे हो बेस को, तो इट मींस ये जो मैंने आपको विड्थ दिखाई है, क्योंकि यही हिंड्रेंस है करंट को यहाँ से यहाँ पास करने में, यही ऑब्स्ट्रक्शन है, यही रुकावट है, ठीक है। जैसे ही आप ये अप्लाइड ईएमएफ लगाते हो इसको, इट मींस आप इसकी विड्थ कम कर रहे हो। तो जैसे ही आपने फील्ड लगाई, तो मैं दोबारा से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये अब बेस जो है, अगर ईएमएफ साथ में आ गई, फीडबैक आपने लगा दिया, तो उसकी विड्थ कम हो जाएगी। सो अब करंट इजीली पास करेगा कलेक्टर करंट। सो इस केस में करंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। सो अप्लाई, ये जो ईएमएफ है, फीडबैक है, ये आपकी बेस की विड्थ कम कर रही है। क्लियर है जी? सो दैट एमिटर करंट लिमिटेशन है ना सर, एक बार वो पूरा जब एक मिनिमम पॉइंट तक ही ये हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली। अब ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप अप्लाइड फील्ड से आप ऑसिलेट करवा लो, उसकी फीडबैक y को दे दो, यहाँ से फिर से आप करंट इंक्रीज कर लो, तो ऐसा नहीं है कि साइकिल इनफाइनाइटली चलता रहेगा। एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज ए अपर लिमिटेशन है ना, कि यहीं तक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट है, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो, कितनी मर्जी एनर्जी स्पेंड कर लो, ठीक है। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज हियर कि हर एक सर्किट की लिमिटेशन है कि पर्टिकुलर इसी रेंज तक की फ्रीक्वेंसी आप प्रोड्यूस कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं आप जा सकते, ठीक है। सिमिलरली ये जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन हमारे पास इफेक्ट है, ये जो मेथड है, इसकी भी लिमिटेशन है। दिस ऑसिलेटर हैज लिमिटेशन एज इन दिस केस रेजोनेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। सो यहाँ पे रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं। अब रेजोनेंस होगी तो क्या होगा, जो इनपुट है और जो इनपुट से जो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आउटपुट में 100% ट्रांसफर होनी चाहिए, तब रेजोनेंस होगी, ठीक है। एग्जांपल तो यही होती है ना कि दो वेव्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की हो, तभी रेजोनेंस आएगी। तो इसमें रेजोनेंस किस किस बीच में चाहिए बच्चे? सर XY में। सो इन दिस, नहीं बच्चे, XY में नहीं, रेजोनेंस इन दिस केस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्टर करंट इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड। तो यहाँ जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ये किस फ्रीक्वेंसी की, ये इनपुट वाली फ्रीक्वेंसी है, और जो रॉड, ये जो लेंथ ए बी है, ये जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, उनकी अगर फ्रीक्वेंसी आप सेम कर दो, तब रेजोनेंस कंडीशन आएगी। देन ओनली यू कैन ट्रांसफर द मैक्सिमम एनर्जी, और तब आपके पास अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस होगी, तब जब सिर्फ रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। सर करंट की फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज तक ही रहेगी, तो फिर जो रॉड रहेगा वो भी 50 हर्ट्ज में ही वाइब्रेट करेगा, तो सर वो 20 किलो हर्ट्ज से कैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। In this case, resonance can be obtained by making the frequency of current equal to natural frequency of rod. तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करवाना चाहते हो, उतनी फ्रीक्वेंसी का आपको इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है जी। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर एक डाउट था। हाँ जी सर, इसका मतलब ये है कि हम लोग डीसी सोर्स यूज नहीं कर सकते इसके लिए? हाँ। सर एक बार ये फिर से बता दो कि कलेक्टर करंट इंक्रीज कैसे हो रहा है? मुझे ये आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की डिटेल में पढ़ना मुझे, सो यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। ये विद इंक्रीज इन बेस करंट आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज कैसे करता है, विद इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द बेस। तो ये बेसिक ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट है मुझे। Excuse me, sir. Can you please again explain the resonance which you are saying in AB rod? मैं आपको सिंपली इसको छोड़ो, मैं सिंपल बताता हूँ कि इनपुट और आउटपुट में जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ओनली देन रेजोनेंस कंडीशन विल बी अचीव्ड, एंड ओनली देन मैक्सिमम एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएगी। सो जो जितना आप अप्लाई कर रहे हो वो सब यूटिलाइज होगा फॉर प्रोड्यूसिंग दी अल्ट्रासोनिक वेव। अगर ये रेजोनेंस कंडीशन नहीं आएगी तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट से आपको अल्ट्रासोनिक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ही रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ। हाँ जी सर, आप ये कह रहे हो क्या कि फिर डिस्ट्रक्टिव वेव्स हो जाएंगी? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, ठीक है। सो क्रेस्ट अगर क्रेस्ट पे नहीं पड़ेगी तो एम्पलीट्यूड ऐड ऑन नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ रिड्यूस ही उसको करता रहेगा। सो अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट से आपको मैक्सिमम आउटपुट लेनी है तो आपको
रेजोनेंस कंडीशन अचीव करनी पड़ेगी। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है बच्चे, LCR या सीरीज और पैरेलल लैब में, उसमें आपके पास एक थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, सो आप उसको पढ़ोगे तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेजोनेंस कैसे हेल्प कर रही है हमें इन अचीविंग दी हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, इस केस में आप बता सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, अप्लाइड फील्ड की कितनी है, और रॉड जो वाइब्रेट कर रही है वो कितनी है? डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड करंट। हाँ, हमने तो डीसी करंट नहीं सर तो 100 प्रोवाइड हर्ट्ज किया। बच्चे मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ। ये है आपका अप्लाइड फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बच्चे। और ये कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रॉड है, लेंथ AB। ठीक है जी। जैसे ही आपकी अप्लाइड फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़नी शुरू हुई फ्रॉम पॉइंट 0 to 1, इट मींस आप पॉजिटिव डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज कर रहे हो, सो लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। AB जो लेंथ थी अब वो बढ़ के ABC तक चली गई। ठीक है जी। अब 1 से अप्लाइड फील्ड के 1 पॉइंट जो है वो 2 तक, मतलब वापस 0 हो रही है। तो ये जो रॉड है ये वापस AB पे आ जाएगी क्योंकि 0 हो गई अप्लाइड फील्ड। अब पॉइंट नंबर 2 से 3 आप रिवर्स डायरेक्शन में उसी एम्पलीट्यूड की, उसी स्ट्रेंथ की फील्ड लगा रहे हो। सो ये क्या होगा, ये अब रॉड की लेंथ डिक्रीज करेगी। AB वही थी, सो ये D पॉइंट। ठीक है, सो अब आपकी रॉड की लेंथ इतनी रहेगी। ठीक है, 3 से वापस ये 4। हाँ जी बच्चे। सर जब रॉड एलोंगेट और कंप्रेस हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टीज नहीं चेंज होंगी रॉड की? बच्चे ये अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर रही हैं इन टर्न। ओके सर। सो ये AD से वापस AB पे आ जाएगी क्योंकि अप्लाइड फील्ड 0 हो गई। ठीक है, तो रॉड एक बार यहां से लेंथ चेंज हुई, एक बार यहां दूसरी चेंज हो गई। ठीक है, क्लियर है बच्चे? सो ये रॉड जो है कितनी बार ऑसिलेट कर चुकी है? एक साइकिल इसका ये है, दूसरे वाला ये है। सो इसकी एक फ्रीक्वेंसी के लिए, एक साइकिल के लिए ये 2 साइकिल कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f कहूं मैं और इसकी n, सो f इज इक्वल टू 2 टाइम्स n। जबकि रेजोनेंस कब आएगी? व्हेन f इज इक्वल टू एग्जैक्टली n। ठीक है जी सर। हाँ जी बेटे। सर यहाँ n क्या? फ्रीक्वेंसी बेटे। फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, आई थिंक बच्चे क्लास का टाइम हो गया, अदरवाइज मैं इसको और भी एक्सप्लेन करता। सो इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। हाँ पूछो बच्चे अपना डाउट। सो ये ट्वाइस कैसे हुआ? बिकॉज उसने फर्स्ट टाइम तो वो आउटवर्ड गई थी एंड देन वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और एक बारी मैं एक्सपैंड हुई थी, तो एक ही होना चाहिए ना? ये देखो बच्चे, ये एक साइकिल है, क्लियर है, और यहाँ जो रॉड मैंने आपको आप सिंबॉलिकली इसके साथ बताई, तो एक ये साइकिल होगी। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव ये होगी। क्लियर है जी? सो अब ये यहां से जो पॉइंट B से C तक गई, वो तो एक ही साइकिल है ना। और जो दूसरी वाली साइकिल है, यहां देखना, अब यहां इसको चाहे मैं कम कर देता हूं, A to D और D to अगेन B। ये जो डिस्टेंस है ये सेम है या नहीं, ये डिपेंड करता है। सो B to C जाने में AB to AC, देन AC to अगेन AB, ये एक साइकिल है उसकी रॉड की। फर्दर AB to AD एंड देन AD to
ए बी अगेन, ये उसकी सेकंड साइकिल है। ठीक है, ये आप फील्ड लगा रहे हो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, अप्लाइड फील्ड, पर रॉड तो ऑसिलेट कर रही है ना, एक बार उसकी लेंथ बढ़ के कम हो चुकी है, एक बार उसकी कम होके बढ़ चुकी है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इस वे में आप इसको देखो, ए डी, अगर मैं रॉड की डायरेक्शन की बात ना करूं, सो यहां आपकी क्या हो रही है, ये लो, ठीक है, ओके सर, क्लियर है? यस सर। तो ये वजह, ये इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में कि हम रेजोनेंस अचीव कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर आपने लिखा था ना f इज इक्वल टू 2n और n आपने बोला था फ्रीक्वेंसी है, तो f क्या हो, f क्या है बच्चे? f मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया? f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड n जो ये फ्रीक्वेंसी है। ओके सर, ठीक है, सो f इज इक्वल टू 2 टाइम्स n, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 बार हो चुकी है। ठीक है, यस सर। नहीं उल्टा लिख दिया बच्चे, n/2 होगा, इसके 2 के बराबर होगी। इसको डिटेल में करते हैं बच्चे, कल एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। ठीक है ओके सर। सर आपने एक बार उसे कॉन्ट्रैक्शन भी करी थी, तो वो क्या किस पे डिपेंड